We are going to discuss today the important topic for standard 11th as well as 9th can also understand 9th, 10th, 11th. Yes, in 10th also 9th, 10th and 11th. But especially for 11th, those who are going to appear in NEET examination, NEET 2026. Then this video will help you. Here is the diagram of neuron. Your brain is made up of, that brain is the part of nervous system, central nervous system. And your brain is made up of this type of tissue. Okay? A special having power to generate nerve impulse, its own action potential. Remember this question that how many cells or how many tissues are there which can generate the action potential or nerve impulse? Have you any answer? बोलिए आप लोग में से किसी के पास है? अभी पढ़ाए हैं? कौन में मस्कुलर मसल्स में कौन? कार्डिक मसल्स, गुड. और दूसरा न्यूरॉन, वेरी गुड. देखिए 9th की हमारी बच्ची आंसर दे रही है. तो आपका हार्ट, कार्डिक मसल्स जो है, कार्डिक मसल्स और न्यूरॉन्स, these are the two type of cells which has power to generate their action potential. Action potential means current. A millivolt current is generated by them and conducted in the form of nerve impulse. So when we see the morphology of the neuron, it has a nucleus containing a big globular structure that is called cytone, which is also known as cell body. Cytone is also known as cell body, and the tail-like structure that is called axon. So cytone and axon, these are the two parts of neuron. Together form neuron, cytone and axon. Up to this, okay? In this cytone, you have a big nucleus, and the membrane of the neuron is known as neurolemma, and the cytoplasm present in the cell is known as neuroplasm. Yes, again question. What is the cytoplasm of muscles called? Cell membrane of muscles and cytoplasm of muscles. Cell membrane of muscles are called sarcolemma and sarcoplasm. Similarly, here neurolemma, neuroplasm. Okay, so at the tip of the dendrons, they branch further in the form of dendrites. Actually, dendrites receive the threshold stimuli. Any stimuli, when received by the dendrites, stimuli. Let me tell you what do you mean by stimuli. A stimuli is any condition, change or substance, any change or any condition or any substance that compel an organism to respond, to react. It's called स्टिमुली. जैसे आप हमें देख रहे हो तो लाइट जा रहा होगा आपके चेहरे पर, मेरा हाथ का डिजाइन ऐसे मिला रहे हैं तो एक आपके अंदर आंख से होके एक स्टिमुली जा रहा है, आपके आंख के रेटिना पर एक स्टिमुली हो रहा है, और रेटिना आवाज जा रहा है कान से, तो कान पर ईयर के पास, कॉक्लिया के पास वहाँ होगा, उस पर एक इंप्रेशन बन रहा होगा करंट, और वो करंट ब्रेन में ले जा रहा होगा, आंख से भी जा रहा है और कान से भी जा रहा है, ऑडियो विजुअल वहाँ जाके प्रोसेसिंग हो रहा है. आप समझ रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम समझ रहे हो. तो ये दोनों से ऑडियो और विजुअल एक करंट जा रहा है, छोटा सा मिलीवोल्ट. कहाँ ले जा रहा है? यही न्यूरॉन से लेके जा रहा है. कहाँ करंट पैदा होगा? तो इस छोर पर वो करंट पैदा होगा. ठीक है, and that current is passed through this channel adjacent. Two neurons are attached with one another through dendrites and end of the axon.
dendrites of one neuron attached with the dendrites axon of one neuron attached with the dendrites of adjacent or other neuron. Axon, dendrites, axon, dendrites. The attachment will be like follow axon end is attached with dendrites. So dendrites and axon end. In this way, they are connected from one another and the impulse passes through. Here, some dot-like structure I made here. This one is called mesial granule. Let me clarify. The person having higher the mesial granule are more intelligent. ठीक है? अभी IAS के एग्जामिनेशन होता है ना, बहुत सारा पेपर है, इसको नहीं अडॉप्ट किया गया, आने वाले समय इसको ले लेना चाहिए. आपका बायोलॉजी का आपका जो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी है, दैट कैन बी ऑल्सो अ पैरामीटर और वैल्यू फॉर द selection. Because if you have a powerful brain, you can think more. What is the parameter? In rest area you can manage, but here you can't manage. Are you getting my point? आप क्वेश्चन आउट करा लोगे, है ना? अब तेज लड़का को 100 में 90 नंबर आ गया, आप 95 लेके बैठ जाओगे, सब दूसरा आदमी क्वेश्चन बताया है, तो वहाँ तो तुम मैनेज कर लोगे. यहाँ कैसे मिसल ग्रेन्यूल को कहाँ से मैनेज करोगे? तो 100 नंबर इसके लिए भी देना चाहिए. जिसके पास ज़्यादा मिसल ग्रेन्यूल भैया उसका रैंक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो बायोलॉजिकली बता रहा है कि उसके पास ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा सोचेगा, वो ज़्यादा सॉल्व करेगा. वो कहीं मैनेज करके नहीं आया है. हाँ, कैसे मैनेज करो? मशीन झूठ बोलता है. लाइट डिटेक्टर से जैसे पकड़ लेते हैं, उस तरह से ये भी मेरा सजेशन है. आने वाले तो सरकारें अपना करेंगे. बायोलॉजी पढ़ाने वाले तो जनरली जाते नहीं हैं, प्रधानमंत्री बनते नहीं हैं, डॉक्टर कमें बनता है, आज तक तो नहीं बना है. आज तक तो कोई डॉक्टर नहीं बना है. देश का प्रधानमंत्री दुर्भाग्य है. जिस दिन देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर या राष्ट्रपति बन जाए, उस दिन ये नियम लागू हो जाएगा. या बायोलॉजी वाला कोई आदमी लागू बन जाए, उस दिन ये नियम लागू हो जाएगा. अब मैं बन जाऊँ तो मैं तो पहले लगे तो बस असंभव, मैं बनूंगा ही नहीं. लेकिन जो बनेंगे उनके लिए मैसेज है, भैया आप सोचिए इसको. वेदर माई पॉइंट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, यू हैव टू थिंक. कोई मैनेज यहाँ नहीं करेगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ 2400 में 2400 नंबर दे दीजिए, इसी पर आपका IAS चुना जाएगा. आप एज ग्रुप पे करो और इसी से चुन लो जिसका न्यूरॉन ज़्यादा कैपेसिटी का है, वो ज़्यादा सब सोचेगा, उसको ट्रेनिंग दो, फिर काम हो जाएगा उसका. मतलब एक सिलेक्शन क्राइटेरिया इसको रखिए. मान लीजिए 2400 नहीं करे तो कुछ इसका वेटेज जरूर होना चाहिए. जैसे आप मिलिट्री में जाते हो तो आपका क्या फिजिक्स देखा जाता है कि भाई जितनी हाइट है ना, चेस्ट है, जितना एक्सपेंशन है, उतना पावरफुल आप होगे, होता है ना. उसी तरह ये भी एक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए. एनीवे, ये मसल ग्रेन्यूल जो कि क्या होता है, इसमें जो आदमी को तेज बनाता है, इसमें देखिएगा आपका RNA रहता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड रहता है, RNA रहता है, प्रोटीन रहता है, बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं इसमें. ठीक है, तो राइबोसोम्स रहते हैं, राइबोसोम से भरा पड़ा रहता है. और राइबोसोम को क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो आप लोग तो जानते होंगे कि प्रोटीन खाने से ब्रेन तेज क्या होता है, कहाँ से होता है? नेसल ग्रेन्यूल आपका कंसंट्रेटेड बढ़ जाएगा, और नेसल ग्रेन्यूल बढ़ जाएगा तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी से सोचवाने लगेगा. तो ये है. उसके बाद इसमें देखिएगा एक छोड़ करके यहाँ देखिएगा मियालिन शीट होता है, प्रोटीनस कवरिंग है. तो ये सब न्यूरॉन में नहीं होता है, बट हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उसमें ये सेरेब्रल न्यूरॉन में होता है. उसके बाद दो जब सेल यहाँ मिल रहे हैं तो एक जंक्शन जैसा बना हुआ है जिसको हम नोड ऑफ रैंडियर कहते हैं. और ये स्क्वेंस सेल है, सब में न्यूक्लियस है, स्क्वेंस सेल है, उसका अपना न्यूक्लियस है. क्योंकि एक टिश्यू है तो कई सेल से मिलकर बना है ना, एक सेल नहीं है, ये एक टिश्यू है. यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, बहुत सारे सेल है. क्लियर? अब देखिए ये जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स. टाइप इनका देखें तो सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटिव. सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? दे ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन. जैसे मेरा स्किन है तो कोई टच कर रहा है, गुदगुदी बना रहा है, छू रहा है, तो ये हमारा न्यूरॉन यहाँ से सेंस करेगा, करंट भेजेगा. ठीक है,
और भेजेगा कहाँ कहाँ तक भेजेगा? ब्रेन तक भेजेगा। ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करेगा और कहेगा कि उसको और गुदगुदवाए हैं या वहाँ से हाथ हटा लें, क्या ऑर्डर देगा? तो ब्रेन जैसा ऑर्डर देगा उसको मोटर लाएगा। मोटर वर्ड का मतलब ये होता है कि डेट वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल, वही मोटर है। मोटर कार आपका क्या है? आप कहिएगा आदेश दीजिएगा, एक्सीलेटर मारिएगा, जाके दीवार में टकरा जाएगा, उसको नहीं सोचना है। वो मोटर है, आदेश आ गया तो चल देगा। तो वही है मोटर, वो आदेश लेके आ रहा है। और तीसरा क्या है? मिक्स्ड या एसोसिएटेड। ये क्या करता है? दोनों काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है तो एक प्यून है जो ऑर्डर लेके आता है, प्रिंसिपल का ऑर्डर लेके आएगा वो दूसरा है, अब टीचर का ऑर्डर लेके पहुंचाएगा वो दूसरा है। एक ऐसा प्यून है जो टीचरों का ऑर्डर लेके प्रिंसिपल से, टीचर का वहाँ से लेके आएगा इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल का ऑर्डर लेके पहुंचाएगा। तो ऐसे भाई दोनों काम कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? बोलो, मिक्स्ड या एसोसिएटेड। तो इस तरह से आपका यहाँ से जुड़ना है। ये क्वेश्चन नेट में चल रहा है 10th में, देखिएगा 10th में खाली इसका एडिशन बता रहा है कि कौन से पैटर्न से जुड़े हुए हैं। दो डेंड्राइट जुड़ रहा, कहीं दो एक्सॉन जुड़ रहा, ठीक है? तो कौन सा सही होगा? तो ये सही होगा, ठीक है? इसको कहते हैं जहाँ वेयर द वन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन एंड्स ज्वाइन, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स, उसको कहते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स इज द जंक्शन थ्रू वेयर द करंट द electrical language is converted to chemical one, and chemical से again electrical language or potential is generated, nerve impulse is generated, the next one and pass on in this way. So in this way our neural system और neural tissue कहाँ मिलेगा? आपको तो बताया कि एपिथेलियल यहाँ है, कनेक्टिव बीच में है, बोन है, ब्लड है, उसके बाद आपका मसल्स है, तो मस्कुलर हो गया। तो न्यूरॉन कहाँ होगा? इसी सब के बीच में देखिएगा कहीं ना कहीं नर्व सेल गुजरते हैं। मसल्स के अंदर में देखिएगा कहीं कहीं नर्व होता है, वही नर्व खराब होता है, यहाँ से सब गुजरता है। स्पाइनल कॉर्ड, आप रीढ़ की हड्डी देखिए, रीढ़ की हड्डी में जो कॉर्ड लाइक एकदम वाइट बहुत सॉफ्ट होता है, वो गुजरता है। उस सब में जैसे घर का हमारा वायरिंग, हेलो, घर का वायरिंग है, उसी तरह क्या है? वो नर्व का नर्व है, और उसी नर्व से आपका हाथ पैर सब हिल रहा है। इसको हिलाने वाला एक दूसरा नर्व है, इसको हिलाने वाला दूसरा, जैसे पंखा चलेगा तो दूसरा स्विच है ना, इसके लिए कैमरा के लिए दूसरा है। तो इसी तरह देखिए इस उंगली को हिलाने वाला दूसरा है, इस उंगली को हिलाने वाला दूसरा है, आँख को हिलाने वाला दूसरा है। तो जितने आपका फंक्शन हो रहा है उतने न्यूरॉन क्या हैं, और सब जाकर जुड़ करके यहाँ से ब्रेन में जुड़े हैं। तो वो जो वायरिंग है आपके बॉडी का वायरिंग है, क्योंकि करंट के पास करंट जस्ट दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन सेल्स, ठीक है? आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप, हम लोग का क्लास यहाँ रहता है। यदि आप स्टूडेंट और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 बैच के लिए, तो आप इनसे जुड़िए। फ्यूचर स्टार लिख लीजिए, कोचिंग, फ्यूचर स्टार कोचिंग क्लासेस। फ्यूचर स्टार कोचिंग क्लासेस, और मैं रहता हूँ आपको, ठीक है? हम लोग भाई स्कूल टीचर है, टाइम कम मिलता है, लेकिन आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप उठाइए और आप ठीक चले जाइएगा, कहीं आप जाने होने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ से क्लास कीजिए 10 से लेके और 12 बजे तक मैं रहता हूँ। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आंसर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जितना से जितना डिफिकल्ट आप यहाँ पूछिए, हम लोग से पूछिए, और हम लोग इसको सलूशन आपको देंगे। अगला वीडियो में दे देंगे, आप देखिए, जुड़िए। और मेरा वीडियो आपको देखना है तो बायो A to Z मैच मेरा बहुत दिन से 3-4 साल से है, जिसमें मैं मैक्सिमम 11th और 12th दोनों का अधिकतर मेरा ऑफलाइन वीडियो है इसमें नीट के लिए, आप उसको देखते रहें। शुरू वाला वीडियो थोड़ा सा लो क्वालिटी का है क्योंकि कोविड-19 के समय का बना हुआ है, तो हम धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर रहे हैं नए से। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आ गया है, तो हम इसके माध्यम से आप लोगों को ऑडियो और सब चीज़ में जो भी प्रॉब्लम है
उसको आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आप इंटरेक्ट करो। और इनसे तो अमित सर से ज्वाइन करो, फ्यूचर स्टार से, इनका नंबर लेकर के, ठीक है। और आराम से आप यहाँ से एसोसिएटेड हो जाइए और अपना तैयारी रखिए। घर पर बैठिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन में आप घर पर बैठिए या ऑनलाइन भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।